नमस्ते ऑल द व्यूवर्स ऑफ एनालिटिका आयुर्वेदा। आपका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। रूल द रेगुलेशन में हम लोग फिर हाजिर हैं। रूल 156 बी तक हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस ऑन द रूल 156 सी ऑफ द ड्रग रूल्स 1945। The duration of certificate of good manufacturing practices for the Ayurveda सिद्धा यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये हमारा लास्ट डिस्कशन था रूल 156 बी में। एंड दिस हैज़ बीन वेरी क्लियर दैट द वंस GMP certificate is granted to a company has to pay the only the certificate retention fee, and certificate retention fee will be valid up to the 5 years from the date of its issue. And if the licensee failed to pay certificate retention fee on or before the due date as referred in the sub rule 1, he shall be liable to pay certificate retention fee along with a late fee calculated at the rate of 2% of the certificate retention fee for every month or part thereof up to the 6 month, and then after that the cancellation. Fine. The rule 156C. All learned scholars, you are requested to open your book because we will go here line by line. Okay, you have opened your book. Now go through the book. Rule 156C, inspection for grant of license and verification of compliance. What this rule is saying? Clause 1, before a certificate in form 26E1 is granted, before a certificate in form 26E1 is granted, but means before issuing of the certificate of the GMP, what is the procedure? The licensing authorities shall cause the establishment in which the manufacturer of drug is proposed to be conducted or being conducted to be inspected by one or more inspectors appointed by the state government under this act, with or without an expert in the field concerned, and the inspector or inspectors shall examine the establishment intended to be used or being used for the manufacture of drugs. बहुत open है. The state licensing authority, if they have the drug inspector as per this act appointed, and in the government of UP, what is the one DI is appointed among the Ayurvedic medical officers, or among the DAOs, divisional Ayurvedic officers. I don't want to open this much more, how the DI are being appointed or how the DIs were being appointed in the government of UP. It's a very open case. So a DI is there, that's enough. And in other state also DI, somewhere appointed by the commission, somewhere in the same way. The DI is a very powerful post in the Directorate of Government of Uttar Pradesh. I know because I was sometimes part of all this drama, and therefore I resigned twice from this whole business of the government of Uttar Pradesh. So there is a one DI. I want to say much more, but I am limiting myself. So the DI is appointed, and that DI along with the expert, means there are the two experts. One is from the Drabagun or one from the Rasashastra, which the post I was holding in the government of Uttar Pradesh. So those experts also may be accompanying the drug inspector during the inspection, and those reports will be considered by the SLA whether the manufacturing is already being done or supposed to be manufactured in a new factory or a old factory. What is the class 2? The inspector shall verify the self-declaration of adherence to the condition of license and the provisions of the Drug and Cosmetic Act and the drug rule once in 5 years or as needed as per the risk-based approach.
दैट टीम मे बी DI ओनली और ग्रुप ऑफ DI। तो यूपी में एक ही DI होता है। वो जो जोन बटे होते हैं जो अलग अलग से, वो दूसरे स्टेट्स की व्यवस्थाएं हैं। और गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में तो एक भी आदमी ही नहीं है। तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन न हो नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश की इन्फॉर्मेशन अभी फॉर्म ऑफ बिट्स में छपी थी, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ नॉट ए सिंगल पर्सन इज अपॉइंटेड इन दिस कैटेगरी। ऑफिस इज वैकेंट। अब भर लिया होगा तो पता नहीं। सो दैट टीम, द अपॉइंटेड DI प्लस एक्सपर्ट will visit the premises and to see the self declaration जो कंपनी ने दिया था। जैसे कि कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है NCSM के द्वारा, या किसी का भी इंस्पेक्शन होता है नाक के द्वारा, इंस्टीट्यूट्स का होता है, तो पहले जो संस्था है वो बताती है कि हमारे पास ये चीज़ें हैं। एक डॉक्यूमेंट जमा होता है, उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए टीम आती है, चाहे नाक की टीम हो, चाहे NCSM की टीम हो, और चाहे यहाँ पर ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग वाली टीम हो, या आप बिल्कुल अपने जनरल पर्सनल लाइफ में जाइए। आप कहीं लोन अप्लाई करते हैं कि हमको ये है, ये प्लॉट है, ऐसा है, ये अपार्टमेंट है, तो बैंक का आदमी देखने आता है कि हाँ वो वास्तविक स्थिति क्या है, तब आपको लोन सैंक्शन होता है। तो इन द सेम वे हियर, व्हाट द थिंग्स हैज़ बीन सबमिटेड बाय द owner of the factory who is seeking the GMP certification from the state licensing authority, they will submit some documents in a set format, and that for the verification of the self declaration, adherence to the self declaration, team is visiting. Next, provided that the inspectors are allotted the inspection duty in a randomized manner, ensuring that the same inspector is not assigned inspection of a particular establishment consecutively for 2 terms of not less than 5-year duration. देखिए, कानून तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत कुछ सोच समझ के बनाया जाता है। अभी पिछले पार्लियामेंट में भारतीय न्याय दंड संहिता आ रही है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं लॉ के हिसाब से, और लॉ के हिसाब से जब बहुत सारी चीज़ें बदली जा रही हैं तो उनका उद्देश्य बड़ा पवित्र होता है, साफ होता है। द ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी पायस एंड द लैंग्वेज ऑफ द दोज lines which are in the amendment of the particular code or the act or this inspection is very clear. नीयत बहुत साफ होती है शब्दों में, लेकिन जब इंस्पेक्टर या कोई भी संस्था जब वो बिटवीन द लाइंस पढ़ने लगते हैं और फिर जब एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो उस समय की नीयत कुछ और अलग हो जाती है। जो इस एक्ट में जो नीयत लिखी गई है वो और जो प्रैक्टिकलिटी में जो नीयत आती है वो दोनों में थोड़ा अंतर हो जाता है, इसीलिए सारी समस्याएं आती हैं। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि इतना ओपन चलिए, रैंडमाइज्ड एलोकेशन करिए इंस्पेक्टर्स का, और ऐसा करिए कि वो इंस्पेक्टर जो है वो एक प्रेमाइसिस में 5 साल के अंदर सेम इंस्पेक्टर न जाए, ये एश्योर कर रहा है ये लॉ। Provided that the inspectors are allotted the inspection duty in a randomized manner, ensuring that the same inspector is not assigned inspection of a particular establishment consecutively for 2 terms of not less than 5-year duration. 5 साल के अंदर एक ही व्यक्ति 2 बार वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मंशा क्या है लॉ मेकर्स की? लॉ मेकर्स की मंशा यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि कोई कंप्रोमाइज़ ना हो स्टैंडर्ड से, कोई कंप्रोमाइज़ ना हो जीएमपी एडहेरेंस टू द सेल्फ डिक्लेरेशन से, क्योंकि लॉ मेकर्स भी मानव स्वभाव को जानते हैं। एक बार परिचय हुआ आप गए, दूसरी बार परिचय हुआ आप थोड़ा नरमी लाएंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ वो जो आप कोई समझ रहा है कि मैं किसी करप्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं। एक व्यक्तिगत बातचीत, व्यक्तिगत व्यवहार आ जाता है, उसमें लोग थोड़ा सा नरमी बरतने लगते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन लॉ ने ये जो व्यवस्था दी है कि नहीं एक ही इंस्पेक्टर नहीं जाएगा। अब बताइए जिस प्रदेश में एक ही इंस्पेक्टर हो वो क्या करे, और वो इंस्पेक्टर वो हो जो कि माननीय मंत्री जी अपॉइंट करें, और वो डायरेक्टर को भी रिपोर्ट न करके सीधे माननीय मंत्री जी को रिपोर्ट करे। डायरेक्टर सर्विसेज अपनी जगह पर हैं,
तो ऐसे DI का क्या होगा? तो वो तो DI एक ही है, तो एक ही हर जगह चाहे जितनी बार भी जाना हो, लेकिन हाँ बदल जाता है। 5 साल मंत्री रहना एक विभाग में बड़ा मुश्किल है एक जगह पे। हाँ तो मंत्री जी बदलते हैं तो DI भी बदल जाता है। तो इसलिए अब ये टीम नहीं आ पाएगी शायद, ये टर्म ये ऐसा हो जाए कि ये नौबत ही ना आए, लेकिन ऐसा लॉ मेकर्स ने व्यवस्था की है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ़ द premises is not inspected within the period of the validity of the GMP certificate or even after submission of retention fee, the GMP certificate shall be deemed to be continued for further term of 5 years। ये देखिए कमाल, दोनों तरफ से है। उधर यदि आप 6 महीने के अंदर फीस नहीं जमा करते हैं और अपना फॉर्मेलिटी नहीं पूरा करते हैं तो GMP कैंसिल मानी जाएगी। और इधर अगर सरकार नहीं भेज पाती है अपने इंस्पेक्टर को, या किसी भी कारण से सरकार अगर इंस्पेक्टर नहीं करा पाती है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं करा पा रही है, तो आपका जो सर्टिफिकेट वो 5 साल तक मान्य रहेगा। ठीक है, बैलेंस है, चेक एंड बैलेंस है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये है कि कंपनीज रिक्वेस्ट करते करते थकती हैं। फिर वही वाली बात, तो अगर एक DI हो या DI है ही नहीं है, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा है आयुष के साथ कि DI है ही नहीं है। तो जब DI है ही नहीं है और कंपनी को ज़रूरत है रिन्यूअल की और वो सरकार की तरफ से कोई आ नहीं रहा है, तो इसमें व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। अप्रिशिएट मैं करूँगा कि दोनों ही लोगों पर बैलेंस, चेक एंड बैलेंस लगाया गया है। कंपनी अगर कंप्लाई नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी, और कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है, गवर्नमेंट नहीं कंप्लाई कर पा रही है, तो कंपनी का बेनिफिट होगा, वो सर्टिफिकेट चलेगा। अब 156D पर आते हैं। इसकी भाषा थोड़ी बड़ी एलिट्रेशन वाली है, एक ही शब्द को और अलग अलग रेफरेंस में समझना होगा, लेकिन समझते हैं हम लोग। ये रिपोर्ट बाय इंस्पेक्टर है, चलिए पढ़ते हैं पहले। लेकिन इसके पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। आजकल ढेर सारे टाइम्स ऑफ इंडिया में या किसी भी बड़े अखबार में फुल पेज एडवर्टीजमेंट आ रहा है। स्पेसिफिकली मैं टाइम्स में देख रहा हूँ, हिंदी भाषा में भी आ रहा है। मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो क्लेम कर रही है कि उसके पास WHO GMP के साथ US FDA का भी सारे पैरामीटर्स वो फुलफ़िल कर रही है। GMP की बात आ रही है तो मुझे याद आ गया। और वो एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं, DMF। अब एडवर्टीजमेंट तो मैं यहाँ रखा नहीं हूँ, सोचा था कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा अब 56 ईयर की एज में कुछ चीज़ें स्लिप भी करता हूँ, मिस करता हूँ। लेकिन आप टाइम्स ऑफ इंडिया पलट के देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा मैनकाइंड कंपनी का हो फुल पेज एडवर्टीजमेंट। चलिए अगले इंट्रैक्शन में दिखा दूंगा मैं आपको, जब 157 पर आएंगे तो उसको याद करके दिखाऊंगा। तो ड्रग DMF, मैंने सोच में पढ़ा ये DMF क्या बला आ गई भाई। अभी तक तो हम लोग GMP जानते थे, WHO GMP जानते थे, SOP जानते थे, COPP जानते थे। अब ये DMF क्या आया? ये DMF क्या नई चीज़ आ गई जो कहीं नहीं है? देखिए, जो हमारे यहाँ के स्कूल लर्नर्स हैं साथ में, जब ये रिकॉर्डिंग होती है तो वो बैठ के अपनी किताब खोलते हैं। तो ये आरोप मेरे ऊपर नहीं लग सकता कि नहीं मैं खाली YouTube में ही पढ़ा रहा हूँ। लोग बैठ करके साथ में अपनी किताबें खोले हुए हैं, मेरे राइट साइड लेफ़्ट साइड में वो लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग नेट पर DMF देख रहे हैं, है ना। तो DMF इज़ ड्रग मास्टर फाइल। तो इसको कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो DMF का जब मैंने सोचा कि ये तो कुछ नया नोटिफिकेशन आ गया क्या, ये क्या है बहुत बड़ी बला, इसके लिए तो कुछ और भी पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे कंपनियों को, कुछ और ये तो और स्ट्रिक्ट कोई विजिलेंस की चीज़ आ गई। DMF क्या है? तो वही खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ये DMF इज़ समथिंग विच इज़ द ड्रग मास्टर फाइल। आप जैसे यूनिट टू यूनिट आप एक SOP बनाते हैं, GMP लेते हैं, WHO GMP करते हैं, तो ड्रग मास्टर फाइल में ये है कि आपको एवरी पॉइंट एवरी यूनिट आपको एक परफॉर्मा है उसमें भरना है। हाँ, ये ठीक है कि रेगुलेशंस और आपको
वो सारे पैरामीटर्स जो फार्माकोलॉजिकल हैं जो यूएसएफडीए के डब्ल्यूएचओ जीएमपी के वही हैं, और यूएसएफडीए डब्ल्यूएचओ, और यहाँ पर आपको उस फाइल का नाम बस बदल दिया गया है, डीएमएफ हो गया है, और उसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो ड्रग मास्टर फाइल। ठीक, तो डीएमएफ इज द ड्रग मास्टर फाइल। अभी एक नया क्लेम है। देखिए, फार्मेसी के फील्ड में एक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, गर्व, घमंड अहंकार नहीं, गर्व, कि उनका स्नेह मुझे प्राप्त है, और वो हैं प्रोफेसर सीके, प्रोफेसर कहने की भाई आदत है, डॉक्टर सीके कटियार जी। लेकिन वो प्रोफेसर का मतलब क्या है? अब जो ज्ञान दे पढ़ाए, तो डॉक्टर सीके कटियार साहब जो है अभी इमामी से अब डाबर में रहे, फिर रेबेक्सी में गए, फिर इमामी में हैं, इमामी से भी उनका टर्म पूरा हो रहा है क्योंकि एक एज होती है। तो डॉक्टर सीके कटियार की एक बात मुझे याद है कि उनका लेक्चर मैं सुन रहा था, आप उम्मीद करिए कब, इट इज़ बैक 1998। जी हाँ, तब वो डाबर में थे। 1998 में जब मैं सीनियर रेजिडेंट था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थशास्त्र में, तो उनका एक लेक्चर हुआ क्वालिटी एश्योरेंस और मुझे मेरी यादाश्त साथ है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस पर उनका एक लेक्चर हमारे डिपार्टमेंट में कराया गया था। आई वॉज जस्ट ए PhD स्कॉलर एट दैट टाइम एंड प्लस सीनियर रेजिडेंट। सीनियर रेजिडेंसी 3 साल की होती है, तो मैं 1.25 साल ही कर पाया था। उस बीच मेरा फिर जामनगर में सिलेक्शन हो गया, तो मैं उसको छोड़ करके और PhD का मिनिमम टर्म पूरा करके जामनगर ज्वाइन कर लिया था। तो उस समय डॉक्टर सीके कटियार साहब ने एक अपना लेक्चर दिया था क्वालिटी एश्योरेंस पर, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। बहुत दिनों तक मैं उसके कागज़ को प्रिंट को रखा रहा, अभी भी शायद होगा मेरे पास, क्योंकि अब तो डिजिटल का ज़माना है, इसलिए वो डॉक्यूमेंट का, और तब वो डॉक्यूमेंटेशन का ज़माना था, डिजिटल ज़माना नहीं था, तो प्रिंट और उसी पर सब चलता था। तो डॉक्टर सीके कटियार जी ने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था एडवर्टीजमेंट्स का और दिमाग पर असर का। वो मुझे याद है, रेफ्रिजरेटर्स में एक टेक्नोलॉजी होती है पफ, और वो हर रेफ्रिजरेटर वाला यूज करता है। कोई भी रेफ्रिजरेटर बिना उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किए रेफ्रिजरेटर बन ही नहीं सकता। लेकिन एक कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट में ले आई, गोदरेज, नाम भी मुझे याद है। उसने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखना शुरू किया कि पफ टेक्नोलॉजी से निर्मित फ्रिज। अब लोगों को लगा कि ये पफ टेक्नोलॉजी क्या हो गई। उसने अपने एडवर्टीजमेंट में लिखा पफ टेक्नोलॉजी से निर्मित फ्रिज, जबकि बिना पफ टेक्नोलॉजी के फ्रिज बन ही नहीं सकता। ऐसा डॉक्टर सीके कटियार साहब उसमें बता रहे थे। तो वो पफ टेक्नोलॉजी से निर्मित फ्रिज की जब बात आती है, तो अब गोदरेज की बिक्री बढ़ गई। लोगों को लगा कि ये कौन सी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिसमें कि ये एक नया तरीके का फ्रिज बन रहा है। और मैं अब कहता हूँ कि ये मैनकाइंड का जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है ना, फुल पेज, ये वही है। हर कंपनी डीएमएफ अपना रखती है, डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड है और यूएसएफडीए को फॉलो कर रही है, तो डीएमएफ तो उसको तैयार करना ही करना है। ड्रग मास्टर फाइल तो उसके पास होगी ही होगी। लेकिन यही है कि मार्केट में क्लेम कौन पहले करता है, और उन शब्दों के साथ तो मैनकाइंड है। तो ये बातें जीएमपी के साथ डीएमएफ, और बोलता ही चलूँ, एडवर्टीजमेंट का कितना असर होता है पॉजिटिव और कितना नेगेटिव। एक सिबाका टूथपेस्ट आया करता था फ्रेंड्स, उसका एडवर्टीजमेंट न जाने किसने बना दिया कि थोड़ा सा सिबाका, कि थोड़ा सा लीजिए। वो थोड़ा सा सिबाका का एडवर्टीजमेंट बैक 1998 में, ये दोनों एग्जांपल डॉक्टर सीके कटियार के ही हैं, जो मुझे आज मैं 2023 में कोट कर रहा हूँ। और गुड 25 साल के बाद, वो 25 साल पहले का उनका लेक्चर था हमारे पुराने डिपार्टमेंट में, जो एलडी गेस्ट हाउस के सामने था। अब तो हम लोग एक नए डिपार्टमेंट, एक नई बिल्डिंग में हम लोग हैं। तो उन्होंने कहा था कि सिबाका कंपनी ही ख़त्म हो गई। वो थोड़ा सा टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट ऐसा आया कि लोगों ने थोड़ा यूज़ करना शुरू किया, और सिबाका का प्रोडक्शन घट गया, और सिबाका कंपनी टूथपेस्ट की बंद हो गई। तो एडवर्टीजमेंट्स का इतना असर रहता है कि आपने डीएमएफ फाइल करके एक नया निकाल रहे हैं, और थोड़ा सा चेंज होगा उसमें। पफ टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटर की आई, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें,
लेकिन एडवर्टीजमेंट का तो कॉमन पब्लिक के माइंड पर असर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तब आगे पढ़ते हैं जीएमपी के साथ हुई। अब 156D पर आते हैं, रिपोर्ट बाय इंस्पेक्टर्स। फिर कहते हैं कि द इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स शैल एग्जामिन ऑल एरियाज ऑफ द premises, plant and appliances, and also inspect the process of manufacture intended to be employed or being employed, along with the means to be employed or being employed for standardizing and testing the drug to be manufactured or being manufactured, and inquire into the professional qualification of the technical staff to be employed, and he shall also examine and verify the statements made in the application in regard to their correctness and the capability of the applicant to comply with the requirement of the competent technical staff, manufacturing plant, testing equipment, and the requirement of the good manufacturing practices and plant and equipments as laid down in Schedule T. Complicated paragraph. चलिए आप एक बार इसको फिर पढ़िए, तब तक मैं 1 मिनट का मौन धारण करता हूँ। रिवाइज इट, रिपीट इट। Repeat it. It's really very meaningful. It's really very that paragraph which is explaining the power of inspectors in practical terminology. कि एक इंस्पेक्टर और द ग्रुप ऑफ इंस्पेक्टर्स अलॉन्ग विद द एक्सपर्ट और विदाउट एक्सपर्ट अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो वो क्या क्या चेक कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें। साफ साफ ये कहते हैं, पढ़ लिया होगा आपने 2 बार, कि जब ये आपके कंपनी में पहुँचे, कौन, डीआई साहब या डीआई साहिबान, विशेषज्ञ के साथ या विशेषज्ञों के साथ, तो क्या क्या देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, हम ये नहीं बताएंगे, हम ये नहीं दिखाएंगे। नहीं, ये जब आपके कंपनी में पहुंच गए तो आपके पूरे प्रेमाइसेस, ये शेड्यूल टी को फॉलो करेंगे पूरा, आपके पूरे प्रेमाइसेस को देखेंगे, आपके पूरे औद्योगिकी के, अभियांत्रिकी के, इंजीनियरिंग के जो भी आपके इक्विपमेंट्स प्लांट हैं वो आपका देखेंगे, वो आपके अप्लायंसेस देखेंगे कि आप कैसे बना रहे हैं, वो ये भी देखेंगे कि आप वो पर्टिकुलर दवा कैसे बना रहे हैं। आप कोई कप सिरप बना रहे हैं, अब मैं किसी कंपनी के किसी प्रोडक्ट का नाम बिल्कुल नहीं लेना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप सीतोपलादी चूर्ण बना रहे हैं, तो मैं शास्त्रीय औषधियों के नाम ले लूँ तो कैसे बनाएंगे, त्रिफला चूर्ण बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, महानारायण तेल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, विषगर्भ तेल बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, रस सिंदूर बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, आरोग्यवर्धनी रस बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे। इसकी पूरी जानकारी लेने का अधिकार इस इंस्पेक्शन की टीम को है। और अगर आप कोई नई टेक्नोलॉजी से या कुछ नया आप अभियांत्रिकी से बात करना चाह रहे हैं, कोई नई इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो वो भी आपको इस इंस्पेक्शन की टीम को बताना होगा कि ये हम टेक्नोलॉजी लगाएंगे अपने इस नए प्रोडक्ट में। इसका भी इनके पास अधिकार है। और जो सबसे बड़ा अधिकार, कि जो आपने लाइसेंस लेने के लिए जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस के लोगों को अपनी कंपनी में स्थान दिया है, whatever the technical person you have employed, they are under your role of your company, they will be questioned by this expert group for their skill, for their knowledge, for their competency। ये बहुत बड़ा अधिकार है कि आपने जिसको वहाँ रखा है, बी फार्मा, आयुर्वेद, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य BSc + 3 ईयर एक्सपीरियंस, वो हट जाना चाहिए भाई, हटा दीजिए गवर्नमेंट, तभी कुछ बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स का कल्याण होगा। या आपका जो BMS वहाँ रखा हुआ है, हमने देखे हैं ऐसे केसेस
सुने नहीं देखे हैं कि कंपनी पर एक, सॉरी टू से, बट इट इज द सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर. I'm very much disappointed. I'm not apologetic. I'm very much disappointed by this trend going on in some companies. एक उनके यहाँ BMS डिग्रीधारी वैद्य जी का नाम होता है, वो बस उनका वो दस्तखत ले आते हैं, लाइसेंस ले लेते हैं. वैद्य जी को पता ही नहीं होता कि वो कंपनी में क्या बन रहा है जहाँ हमने दस्तखत किया है और जहाँ मैंने कागज़ दिए हैं. हाँ, वही वाला हिसाब है जो NCSM घोष टीचर पे आजकल पीछे पड़ी है ना, जियोटेक फ़ोटो ले रही है ना, बहुत अच्छा कर रही है. अप्रिशिएशन टू द NCSM. कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा यहाँ भी कि टेक्निकल स्टाफ के नाम पर ये 2 लोगों का कागज़ दे देते हैं और वो कागज़ रहता है और उनको पता नहीं होता है कि क्या है, कंपनी बना क्या रही है. तब यहाँ पर ये प्रोविज़न आया है कि जो इंस्पेक्टर्स की टीम आएगी, जो एक्सपर्ट्स होंगे, वो उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि ये आप कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, इस पर क्या करने जा रहे हैं, इस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये आपने चेंज क्यों किया है, ये सारे सवाल. तो अब सही DI जाएं और सही एक्सपर्ट जाएं, एक्सपर्ट तो सही हैं, DI भी सही हैं, तो ये एक बहुत लॉजिकल है रूल 156D, जिसमें कि इंस्पेक्टर्स इतने सवाल पूछ करके और रिपोर्ट लगाते हैं. तो खाली मशीनरी नहीं, खाली मैन्युफैक्चरिंग मेथड नहीं, कॉम्पिटेंसी एंड द स्किल ऑफ योर एम्प्लॉय इज टेस्टेड, शुड बी टेस्टेड, मस्ट बी टेस्टेड. मशीन क्या करेगी, वो तो आदमी है ना जो कि अब डिसाइड करेगा. मशीन बहुत कुछ करेगी लेकिन आदमी के बराबर तो नहीं है वो. मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ और न चैट GPT की बात कर रहा हूँ. लेकिन यहाँ पर वो कॉम्पिटेंट स्किल वाला व्यक्ति ही अपॉइंट होना चाहिए. ये बहुत अच्छा क्लॉज है रूल 156D में कि इंस्पेक्टर इतना पूछ सकता है, सवाल जवाब कर सकता है, जिससे कि लोग भागते हैं, छुपाते हैं, और किया जाना चाहिए भी. नेक्स्ट है द इंस्पेक्टर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज इंस्पेक्शन shall forward a detailed report giving his findings on each aspect of the inspection along with his recommendation to the licensing authority. Simple. हर चीज़ पर, हर प्रोफार्मा पर, हर पहलू पर बात करके जो उन्होंने पाया है, उस जो उन्होंने समझा है उस कंपनी में कि कॉम्पिटेंट लोग थे कि नहीं थे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए मशीनरी थी कि नहीं थी, और शेड्यूल टी के सारी चीज़ें फॉलो हो रही थी कि नहीं हो रही थी, उस सबके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करके अथॉरिटी को दे देंगे अपनी रिकमेंडेशन के साथ. रिकमेंडेशन द वर्ड इज़ येस और नो. हम लोग PhD वावा वैसी लेते हैं ना, MD में नहीं होता, बट PhD वावा वसी का जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का परफॉर्मा है उसमें बहुत क्लियर कट आप सारी चीज़ें लिख दीजिए. कंट्रीब्यूशन ऑफ द सब्जेक्ट, क्वेश्चन आंसर ऑफ द सब्जेक्ट, न्यू थिंग ऑफ द सब्जेक्ट, एनी डाउट, सारी कहानी कहने के बाद, सब एकेडमिया का डिस्कशन करने के बाद, एक लाइन में वहाँ पर यूनिवर्सिटी का कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आपसे पूछता है यस और नो. वहाँ पर लिखना पड़ता है यस और नो. ये पूरा इतिहास अलग, इंट्रोडक्शन से लेकर मटेरियल मेथड तक, डिस्कशन तक, वो सब अलग. पूरी क्वेरी और पूरे एग्जामिनर्स का इवैल्यूएशन सब अलग. फाइनल रिजल्ट सिर्फ 3 वर्ड आते हैं, 3 लेटर आते हैं, सॉरी नॉट वर्ड्स, लेटर. यस PhD अवॉर्डेड, NO नो PhD नॉट अवॉर्डेड. बाकी जो उधर कहानी लिखी गई है, गाथा, शैक्षणिक गाथा, वो गाथा ही है. फाइनल रिजल्ट यहाँ है यस और नो. एक क्लॉज उसका है, एक लाइन है उसकी. तो यहाँ भी रिकमेंडेशन ऑफ द इंस्पेक्टर, रिकमेंडेड टू इशू द GMP सर्टिफिकेट, नॉट रिकमेंडेड टू इशू द GMP सर्टिफिकेट. तो इस पर सारी बातें आती हैं. अब रूल 156E पर आ जाते हैं. अब जब रिपोर्ट आ गई तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेंगे, प्रोसीजर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी.
if the licensing authority, after such further inquiry, if any, as he may consider necessary, and after being satisfied that the requirement of the provision referred to in the rules under the act have been complied with, that the conditions of the license shall be observed, shall issue a license under this part. जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, एसएलए है, उसने समझ लिया, या वो एक और इंक्वायरी करा सकता है, उसके पास है पावर। ये 156 ही बोलता है कि सच फर्दर इंक्वायरी इफ एनी ही मे कंसिडर नेसेसरी, री इंस्पेक्शन, रिपोर्ट आई, नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, या उसी के बेसिस पर कुछ उसको समझ में आया किसी और स्रोत से, तो री इंस्पेक्शन भी हो सकता है, फर्दर इंक्वायरी भी हो सकती है, और इंक्वायरी न करके खाली पेपर पर भी पूछा जा सकता है। एंड आफ्टर बीइंग सेटिस्फाइड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजंस रिफर्ड टू द रूल्स अंडर द एक्ट हैव बीन complied with, that the conditions of the license shall be observed, shall issue a license under this part. Second क्या है? If the licensing authority is not satisfied of the requirement under the sub rule 1, shall issue a memorandum of shortcomings and the conditions which shall be satisfied before a license is granted, and shall supply the applicant a copy of the inspection report. Logic है, as per law है। यदि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं एसएलए स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो मेमोरेंडम ऑफ शॉर्टकमिंग्स भेजेंगे, अपनी चिट्ठी भेजेंगे कि आपके पास ये कमियां हैं, जैसे एनसीआईएसएम का इंस्पेक्शन में आता है कि आपके पास ये कमियां हैं, और वो फिर शैल बी सेटिस्फाइड, कंपनी को बताना होगा, उसको संतुष्ट करना होगा एसएलए साहब को। एंड अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट जाती है, तो आगे उस पर विचार हो सकता है। शैल बी सेटिस्फाइड बिफोर ए लाइसेंस इज ग्रांटेड एंड शैल सप्लाई द एप्लीकेंट ए कॉपी ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अगर वो शॉर्ट कमिंग्स देते हैं तो उनको इंस्पेक्शन रिपोर्ट की कॉपी भी देनी होगी। थर्ड, द एप्लीकेंट विद इन 2 months ऑफ इशू ऑफ सच मेमोरेंडम अंडर सब रूल 2 शैल रिप्लाई द सेम। ठीक है, मिल गया तो आप 2 महीने के अंदर उसका उत्तर दीजिए। On non-submission of the requirement under sub-rule 2, the licensing authority shall reject the application and shall inform the applicant the reasons for such rejection. Simple. अगर आपने 2 महीने के बाद इसको नहीं किया, नहीं देखा, नहीं जाना, तो आपका ये जो आपने कंप्लाई नहीं किया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। इट इज़ वेरी नेचुरल। द एप्लीकेंट विद इन 2 months ऑफ इशू ऑफ सच मेमोरेंडम, जब आपको शॉर्ट कमिंग्स का मेमोरेंडम मिलता है और उसके बीच आप अगर नहीं कर पाते हैं, तो आपका अब जो एप्लीकेशन था रीजन बताते हुए लाइसेंसिंग अथॉरिटी उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिफ्थ है, फॉर दिस पर्पज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी शैल इंटीमेट द एप्लीकेंट एंड प्रोसेस द एप्लीकेशंस थ्रू पोर्टल ई औषधि। ठीक, अब ये सारे काम के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो भी एप्लीकेंट को बताएगी या एप्लीकेशन को बताएगा, वो सब ई औषधि पोर्टल से होगा, जबकि ई औषधि पोर्टल अभी बहुत जगहों पर काम नहीं कर रहा है। ये भी एक वास्तविकता है। और 156A का आज लास्ट ले लेते हैं, क्योंकि फिर अगले टर्म पे 157 शुरू करेंगे। 156F क्या कहता है कि फर्दर एप्लीकेशन आफ्टर रिजेक्शन हो गया एक बार, उसके बाद क्या करना है। If the applicant within a period of 6 months from the rejection of an application for a license or certificate of good manufacturing practices, as the case may be, inform the licensing authority that the conditions laid down have been complied with, and deposit an inspection fee of ₹1,000, and the licensing authority may, after a further inspection, if any, is satisfied that the conditions for the grant of a license or certificate have been complied with, issue a license or certificate under the part। आपका एक बार रिजेक्शन हो जाता है, घबराइए मत, 6 महीने का आपके पास फिर समय है। उस कारण को शोइंग द कॉज, जो उसके चलते आपको रिजेक्शन हुआ है, उसको कंप्लाई करिए, उसको बताइए, उसको पूरा करिए, और फिर से अपने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाइए और उनको संतुष्ट करिए। और वो संतुष्ट हो जाते हैं आपके कंप्लायंस से, तो आपको लाइसेंस जो कि दवा बनाने का या सर्टिफिकेट ऑफ जीएमपी, दोनों आपको फिर से इशू हो सकता है। ये पैराग्राफ ये कह रहा है, रूल 156F, फर्दर एप्लीकेशन आफ्टर द रिजेक्शन।
आफ्टर वो सारी चीज़ें 2 महीने के बाद आपका रिजेक्शन आ गया 156E के अंतर्गत। 156F आपको एक और मौका देता है, इज गिविंग यू वन मोर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई अगेन आफ्टर द विद द कंप्लेंट्स ऑफ द ऑल द मेमोरेंडम ऑफ शॉर्टकमिंग्स, एंड द SLA may issue the license, or at the case, or if you are applying for the GMP or for the license, as per the case they may issue, and this is a 156F। चलते चलते आज 2 मिनट और। अभी मेरे पास एक फ़ोन था थोड़े दिनों पहले, 1 महीने के अंदर किसी स्टेट से, बड़ा आश्चर्यजनक फ़ोन था। ये सेफ्टी स्टडी क्या होती है? हमने कहा क्या मतलब? तो ये सेफ्टी के लिए लाइसेंस में मांगा जा रहा है कि सेफ्टी स्टडी चाहिए, ये क्या होती है? हमने कहा आपको किसने पूछा? वो वहाँ से एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था। वो मिनिस्ट्रियल स्टाफ हैं जो कि जिला स्तर के आयुर्वेदिक कार्यालय में कार्यरत हैं, और उन्होंने मुझे पूछा कि सर किसी प्रदेश के, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब मैं इस फील्ड में नॉमिनेशंस में था, कमेटियों में था, सब काम करता था गवर्नमेंट्स के, तो अब तो थोड़ा सा अपने आप को अलग किया स्वास्थ्य के कारण से, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये सब तो लोग जानते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे जगह के स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी फ़ोन करके कभी कभी विचार विमर्श कर लेते हैं, क्योंकि एकेडमिया से विचार विमर्श करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। इंडस्ट्री को एकेडमिया से ज़रूर उसके संपर्क में रहना चाहिए। तो ऐसा है हमारे साथ, बहुत सारे इंडस्ट्री के भी मित्र फ़ोन करते हैं, किसी भी इसमें इंडस्ट्री के लिए भी कोई लिमिटेशंस नहीं है ना, किसी स्टेट का है। तो एक स्टेट के एक मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने मुझे फ़ोन किया कि ये सेफ्टी स्टडी क्या होती है, ये लाइसेंस में ज़रूरी है। मैंने कहा सेफ्टी स्टडी होती है, हर ड्रग की होती है, उसके लिए गाइडलाइंस हैं, CCRS की गाइडलाइंस हैं, और उसी के अनुरूप करना होता है। या आप किसी और बड़ी संस्था का गाइडलाइंस मानना चाहते हैं तो OECD गाइडलाइंस है, या और भी जाना चाहते हैं तो ICMR की गाइडलाइंस हैं। आप ड्रग रूल्स में जाइए तो शेड्यूल वाइज दिया हुआ है कि पूरी सेफ्टी स्टडी कैसे होगी, और वैसे ड्रग रूल से भी करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी आश्चर्यजनक बात कही, जो उनके राज्य का जो निदेशालय था वहाँ के लोग भी नहीं जानते थे कि सेफ्टी स्टडी कहाँ से कैसे की जाएगी। भैया, जब निदेशालय के लोग भी नहीं जानते हैं, और जब कोई विषय के एक्सपर्ट होकर के बैठे हैं वहाँ पर स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में कि सेफ्टी स्टडी कैसे होगी, तो आयुष औषधियों का मानकीकरण का क्या होगा? मैं फिर से वही बात बड़ी विनम्रता से कहना चाह रहा हूँ, किसी अहंकार से या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग अगर फेस रीडर हैं तो समझ सकते हैं कि मैं किसी अहंकार से बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ा चिंतित मन से बात कह रहा हूँ, दुखी व्यथित मन से कह रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट्स वहाँ बैठे हुए हैं स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इन औषधियों का लाइसेंस देने के लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी का टीचर हूँ, आप विद्यार्थियों के बीच में बात कर रहा हूँ, तो मुझे ये बात कहना पड़ेगा। और आप वहाँ बैठे हुए हैं, आपका सिग्नेचर से लाइसेंस निकलेगा, और आप जानते ही नहीं कि सेफ्टी स्टडी होती क्या है। तो आप क्या न्याय कर रहे हैं? किसके साथ न्याय करेंगे? उस कंज्यूमर के साथ जिसको दवा जानी है, या उस कंपनी के साथ भी नहीं करेंगे जो कि आपके यहाँ लाइसेंस के लिए आई है, या आप अपने सिस्टम के साथ भी नहीं न्याय करेंगे। आप किस बात के सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं कि आपको पता ही नहीं कि सेफ्टी स्टडी क्या होती है और किस रूल के अंतर्गत होती है, और कंपनी आपको क्या सेफ्टी स्टडी देगी? लेकिन ये वास्तविकता है और ये बदलनी चाहिए। और ये कब बदलेगी? जब आप जो इस बात को सुन रहे हैं, PG PhD स्कॉलर या कोई भी किसी भी उम्र का सीखने के लिए कोई उम्र बाधा नहीं होती है। आप अगर उस पद पर पहुंच गए हैं अपने प्रारब्ध से, भाग्य से, सौभाग्य से, अपनी कर्मठता से, और इस विषय को नहीं पढ़ा है आपने, तो पढ़ लीजिए ना। उस पद पर आप सुशोभित हैं तो उसको पढ़िए, जानिए, समय दीजिए। क्यों बाबू के सहारे चलेंगे जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ है और वो आपको समझाएगा कि साहब सेफ्टी स्टडी ये होती। तो ऐसी लाइसेंसिंग में लाइसेंसिंग में ये चीज़ें आ रही हैं, आयुष औषधियों की लाइसेंसिंग में। इनसे पार पाना होगा, और पार कौन पाएगा? आप जैसे हमारे मित्र। इनसे निश्चित रूप से हमको एक साथ होकर के तभी हम अच्छी जनता को विश्वास दिला पाएंगे ना कि हमारी औषधियाँ मानकीकृत हैं और हमारी लाइसेंसिंग प्रोसीजर परफेक्ट है, हमारा GMP सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो बहुत ही
WHO GMP और उसके हिसाब से सही चल रहा है, तो जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। मैं सबको साथ लेके चलना चाह रहा हूँ, सबकी जिम्मेदारी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी सीनियरिटी से सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आप अपने किसी भी वर्च्यू से, मंत्री जी के नज़दीक होने से DI हैं। अब इसे स्पष्ट क्या कहूँ, इसे स्पष्ट तो नहीं बोला जा सकता। तो आप बन गए हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिए, अपनी सारी चीज़ों को देख लीजिए। और क्यों मंत्री जी को ही क्यों बार बार दोष दिया जाए भाई? पूरा सिस्टम लगता है तब कोई बनता है, शासन प्रशासन सब लोग। मैं फिर से अपने शब्दों को सुधार दे रहा हूँ कि यदि आपको शासन प्रशासन और जितने भी जिम्मेदार हैं इस पूरी विधा में उस नामांकन करने के लिए, उन सभी लोगों ने मिल करके आपको ड्रग इंस्पेक्टर बना दिया है और आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, तो कृपया ड्रग रूल 1945 और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसके सारे शेड्यूल्स का अध्ययन कर लीजिए और तब राष्ट्र और राज्य की सेवा में तत्परता से कार्य करिए। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के ज्ञान के भरोसे काम मत करिए। आप विशेषज्ञ हैं, आप निरीक्षक हैं, उस अपनी भूमिका को पहचानिए, अपने दायित्व को पहचानिए। You must feel your accountability. Responsibility is there, but accountability is the much more important. You will be the solely responsible for any fault if the consumer is getting due to your negligence of the subject or ignorance of the subject where you have been appointed. So, the rule 156 is over. Next Monday, we will discuss the rule 157 of the drug rule 1945. Till that, namaste, sadhuvad, abhar, ask questions, be happy. Namaste.